مجھے پتا ہے وہ تو یہی ہے کہ دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائے جائیں. 3 طرح کی اڈلٹری میں ریپ میں نہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائی جائیں اڈلٹری میں. ہاں اڈلٹری ہو یا ریپ ہو کوئی نہیں نہ بالکل نہیں. ریپ میں ہاں نہیں، میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. قرآن اور حدیث اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا سب کرو سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن وسلم نے اس کے اوپر آگے کوئی ایشوز نہیں کی. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. میں ان کو جواب دیا تھا کہ اس کو فون کٹ گیا تھا. جی ہاں ایک بات ہماری رہ گئی تھی، کیا بات رہ گئی تھی وہ بھی کر دوں. وہ بات تو اب نہیں یاد آ رہی، مگر اور بھی باتیں تھی ہیں بہرحال جو میں نے کرنی ہے. ہاں جلدی کر دو پھر جو کرنی ہے. اچھا کیوں؟ اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے چپ ہو جاؤں. کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ کچھ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. یہ ظلم مجھ پہ ہوا اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا سب کرو سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن وسلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیشرفت نہیں کی. تو میں تو نہیں کر سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو خلاف ہو گواہی دینی ہو کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے. یہ جو شریعت گواہی چاہتی نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال دیا. میرے پاس حدیث ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اسلام میں ہے تو غلط ہے، میرے پاس حدیثیں موجود ہیں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا نہ 4 گواہ چاہیے اڈلٹری میں، ریپ میں نہیں چاہیے. دیکھو پہلی بات یہ کہ اس بات میں 4 گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اڈلٹری میں ٹھیک ہے. 4 گواہ یہ اڈلٹری نہیں ہے، یہ ریپ ہے. ہماری بات تو سنو نا. دوسری بات ہوگی ریپ کی. اگر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپ کیا، اگر ایک مرد تسلیم سے ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا ایک عورت کو،
आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं औरत ने सबूत पेश किए थे और सबूत पेश किए थे। और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना 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 गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ मुझे शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में रेप में नहीं, एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई हो नहीं नहीं ना 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 बिल्कुल नहीं, रेप में ज्यादा जानती हो मेरे से। हाँ नहीं मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। मेरी फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ वेबसाइट बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। तो अपनी ना बोली जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 3 सूरतें होती हैं, एक 4 गवाह लाने की, एक सूरत में अगर दोनों फरीक इकरार करते हैं तो फिर सजा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सजा नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा ठीक है मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लग़वियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लग़वियात पे भी नहीं है औरतों से हटाना। मैं जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है वो मैं आपको सारी मैंने आपको नहीं कुरान पे लिखा है, कुरान ऊपर आता है आपसे। मैं तो जितना सुन्नत और हदीस, मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। तुम ज्यादा जानती होगी मेरे से, मुझे इतना इल्म नहीं, तो मैं अपना इल्म बढ़ाने के बाद। अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लग़वियात तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था ना कि इन अल्फाज में दो मतलब देने, बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे से भी पूछना होता है ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं मेरी बात सुनो। हाँ मैं दूसरे तरीके से पूछना होता है, मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल है वो दी हुई है, भेजी हुई। नहीं मुझे वो बताएं, आपका जो लफंगा जो है साला वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाँ वो समझा रहा था, अगर वो कसम खा कहता है बिल्कुल हर कसम के खाने के क्या क्लियर कट, किसी ने जिसने भी देखा है वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट कोई बात मुझे समझ नहीं है। अच्छा वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ। ठीक है हाँ बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत के सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लग़वियात नहीं है। ठीक है, जो ब्रिटिश नेशनल को जब बताओगे तो देखिए कि मेरी नसीहत तुम्हें यही है, मैं नसीहत निगरान कर सकता हूँ। हाँ और मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि तुम्हारी सीधे है कि अब उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी कुछ था, मुझे नहीं पता हुआ कि अगर हुआ भी था तो वो लोग अब मुताद हो गए कि तौबा ताइब कर ली होगी। नहीं मैंने नहीं छोड़ना, ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। मैं तुम्हें कहता हूँ नसीहत करो, इस्लाम के खिलाफ जाती है, ऐसे शब्द नहीं दोबारा मैं डराऊंगी, मैं निदा हूँ, चचा मोदी नहीं हूँ। आपने बैत से निकालना तो आप निकालें। नहीं मैं
کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بحث کر رہا ہے. نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فار سم ریزن. مجھے کوئی ایسی مجبوری پھر نہیں, خدا کا نہیں, اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. ٹھیک ہے, بات سنو, اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے زیب نہیں دیتی کام کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں, تو پھر ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں, میں بیعت میں نہیں, وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا, آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں, میرے سارے چوائسیز میرے سامنے ہیں, اور جب یہ میرے کوئی جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے, یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ, پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ کھلا ہوا معاملہ, ایک اور ہو جائے گا کیا, پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو 4 دن باتیں کرے گی. نہیں جی, یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دنیا 4 دن باتیں کرے گی. بالکل نہیں, یہ آپ کی خوش فہمی ہے, یہ آپ کی خوش فہمی ہے. تم خاموش رہو. نہیں, مجھے بھاگ میں جائیں میری عزت. یہ لوگ تو اب بھگتے ہیں اپنی سزائیں, چاہے اس میں خود نہیں دیکھے نہیں, انہوں نے اپنی موتوں کی موریں لگا دی ہیں مجھے ہاتھ لگا کے. تو ٹھیک ہے, دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا اسپیشل, میں نے تو آپ کو خط میں لکھا ہے جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے, میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کہ میں اسپیشل ہوں. آپ نے اس لفنگی کو خدا بنایا. میں نے معاملہ یا تو حقائق کے اوپر ہوتا ہے یا آپ حقائق کے خلاف جانے جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں. ایک جو ای میل ہے اس میں صرف ایک فکرہ ہے کہ غلط قسم کا, اور اس پہ بھی تم نے جواب دیا ہوا ہے اپنا آپ کو کرنے کا, لیکن اس فکرے سے انہوں نے کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے, کیا مطلب ہے اس کا سوال. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے سے کچھ غلط کام کیا؟ نہیں, مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, جو ناظر اسلام شاد بنا ہوا ہے اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی, وہ درندہ. اس کا پہلے مسئلہ تھا یہ فکرے سے اس کو کوئی سیکشل نہیں, وہ میرے ناظر ہے, میں ان کے انڈر آتی ہوں, سیکشل ہراسمنٹ تو ہو رہی ہے. ڈاؤٹ پہ چلے جاتا ہے, سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہوئی, تو کوئی جواب دیے ہوئے. پلیز, یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں کہ ان کی کلیئر کٹ جواب ہے. جو ہاں یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا, کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ سیٹ سے گرنے لگا تھا. آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی. دیکھو جو بھی کرنا ہے تم نے, ہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں, آپ انصاف نہیں, آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے, آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا, آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا, اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے, ایک سیکنڈ, ہاں تو سوال نہیں. اچھا, اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کی ہے جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مار ہے, آپ نے اس وقت انویسٹیگیشن شروع کیا 3 مارچ کو, جب میں نے آپ کو بتایا انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا, یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا خط داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. تمہیں کیا پتا کہ میں نے کس طرح کی انویسٹیگیشن شروع کی اور کب؟ پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تم یہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں. اچھا, دوگلا بن کر میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں, جو بندہ دوگلا ہو تو اس کی بیعت میں کیوں کرنی ہوئی ہے؟ بس میری مرضی, جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بیعت سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ کہیں گے لڑکی
नहीं निकली है मेरी बैग से, ये मैं आपको हाँ बैत का मतलब क्या होता है, पता है बैत का मतलब? हाँ जी मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना? अलीजेंस देना अपना। लीजेंस देना नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज, इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथा खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा आमिर ने तो मजबूर नहीं ना किया था? आमिर भाई को मैं कई दफा बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। तुम तो एक दफा कर मुझे तो कह चुकी, उसमें काबिल ही नहीं था। हाँ तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जो काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे किससे, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया, मुझे एक दफा बताया मेरा ये जुमला था। तुम्हें मैंने तुम्हारे से पूछा, तुम्हारे जुमला था, मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी बात में तो तुम कि वो काबिल नहीं, तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है तो ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली। मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने, मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, पहले भी शोर मचा सकती थी, चीख मार सकती। नहीं आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है, मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तो अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ जब यहाँ से लंदन से जाती रही हो, हाँ अपने बाबा से जान छुड़ा के जाते रही हो, फिर वापस क्यों आती थी यहाँ? वापिस मैंने बता दिया। फिर मुझे सब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को, जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरी से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैं बाबा हाँ मेरे नजदीक अब तुम्हारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको बाकी तुम्हारा कोई काम तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं इनको सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। देखो सजा बनती है जब जुर्म साबित हो जाए तो जुर्म। अच्छा फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है। और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था? बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। वो ठीक है, चलते ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चंद नहीं
प्यारे हुजूर, आप इतने मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं भोले कि आपको लग रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं, जो मुखलिस अहमदी हैं, जो मुखलिस अहमदी हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों आप कौन होते हैं? नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है कि गलत हाँ ठीक है फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं चाहूंगी फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने, मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहा है, आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था, आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं कि टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया है क्योंकि उस्मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या आवाम बातें करती हैं, आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज खलीफा वक्त, आपका कोई राइट नहीं था खालिद सबूई को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, कौन सी बात वाली? आप, मैंने पूछा था आपको कि आपने खालिद सबूई या चचा फूरी को बताया है, आपने कहा हाँ सबूई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज? यही पापा वाला मामला। सवाल से पहले 10 आदमी को पता था क्या? 10 आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खालिद सबूई को और आपने कहा था हाँ। मेरे बताने से पहले उनको पता थी बातें सारी। हाँ ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना, मेरा राज। आपको क्या राइट था खालिद सबूई को बताना? सवाल है जो तुमने आगे को बता दिया, 10 आदमी को बता दिया। ठीक है वो, बट इट वाज माय सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। मेरा सीक्रेट नहीं, उन लोगों को तुमने बताया था, उनके जरिए से उसको भी खबर पहुंच चुकी थी। ये besides the point है, खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? जब पहले किसी को कुछ पता हो तो बताया जाता था, बाकी मैंने भी ये देखना है कि आप बताना क्या नहीं बताना। नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है खलीफा वक्त। मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफा मसीह खामिस ताला बिन नसर अजीज के पास गई थी। जो दुआएं दे रही हो, दुआएं दे रही हो तो उसकी बात नहीं, आपकी गलत, हम जब बैत करते हैं जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। कौन करेगा? हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं कलाम की हवाले मैं भी तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं पर्दे रखे हज़रत लूत के बेटे पे, हज़रत लूत की बीवी पे, ये क्यों नहीं पर्दे रखे? वो अल्लाह मालिक है। हाँ तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है। क्यों मैं आज नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हज़रत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचा दे अगर खुद नहीं बचना चाहता। ठीक है हाँ ठीक है, तो मुझे दुआ करती हूँ, बड़ी अच्छी दुआ है मेरे लिए। इससे अच्छी दुआ नहीं, और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। मैं चुप
तो मैं नहीं करवा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत इसमें है। नहीं, इज्जत ये किसी सारे हंस रहे हैं इस पे, हंस रहे हैं इस पे, कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। तो तुम्हारे चंद लोग हंस रहे होंगे। नहीं, चंद नहीं लोग हैं, दुनिया हंसेगी आप पे। चलो ठीक है, जब हंसेगी तो फिर मेरा। हाँ, आप, मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी। हाँ, आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए हैं, ये आपका फैसला है। तुम्हारे नाना ने कुछ नहीं किया है, हजरत वसीम जो भी जो नीचे चली जा रहे हैं पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो आदमी था वो मेरे नाना थे, ठीक है। उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे एक चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। कोई आदमी, हर खलीफा अपने वक्त में अपने मुताबिक काम करता है, और हर खलीफा में नहीं नबी के कोई ना कुछ बात होती है, कोई ये चीज नहीं। और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आप क्यों, आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त में जो सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है। पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं जी, नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। ठीक है, गलत है तो फिर अब क्या किया जाए? हाँ, तो अब गलत करनी है। हाँ, वो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, और आपने और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने। आप खुद ने, आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने ना। वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है, मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मैं मिर्जा ताहिर अहमद की नवासी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने कहा था मुझे कि निरार होती है, कहती है मुझे छोड़, क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा सारा लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से कर चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन से तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें बच्चों की तरह हो, मैं कहता रहा। हाँ तो नहीं, हाँ, मगर आप जो एक अमल में आप यही आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है। आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पे तो ना मारे। हाँ, आपके खतों में साबित होते हैं। और दूसरा, मैं ये सीधा आपके मुंह में कह रही हूँ, फातेदारी युसरा को हाथ में लगाई तो आप उसको माफ करें। जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांग ली हो, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैंने जब मजाक का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांग ली हो, तुम्हें क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, युसरा को कत्ल कर ले, आप कहेंगे सॉरी, हाँ ठीक है, उससे गलती होगी। सवाल ये नहीं है, हाँ, तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ, तो देखो जो हालात सामने आए, मैंने कहा बात पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। अच्छा, अगर आप बाबा, आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास। एग्जैक्टली, बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें। फोन पे खत पे लिख दिया था। नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पहली दफा ये लिख दिया जब मुझे ये पता लगा था कि तुम्हारे पे घिनौने इल्जाम है, तुम इनको साबित करो। और उसने लिखा था ये सब कुछ गलत है, ये है वो है। जो तुमने वही बातें की थी उसके ऊपर पहला एक खत मैंने मार्च में उसको लिख दिया था, या फोन पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पे इल्जाम है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया। आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। सवाल ये है, मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुम्हारे पे ये इल्जामात हैं, और उसने मुझे पैगाम किया, जुबानी पैगाम उसका आ गया था, ठीक है। उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब भी आ गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? नहीं, पहली दफा उसी को जब तुमने सुनने आया था, उसको मैंने क्या किया था, बड़ा घिनौना इल्जाम तुम्हारे पे है, मुझे अपनी इस्लाह करो। उसने कहा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे मुताबिक करनी है, मैंने ये अपने मुताबिक करनी नहीं, जो दुनिया के असूल है उसके मुताबिक करनी है। मैंने तो अपने असूल के मुताबिक चलना। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और
کیا ضرورت ہے؟ میری مرضی. ہاں 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 بس جیسے آپ اپنی مرضیاں کریں, کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے, میں نے نہیں اس کو چھوڑا. چھوڑیں گے آپ, میں نے آپ کو خط میں لکھا ہے, کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں, میں آپ کے لیے اچھا چاہتی ہوں. آپ مانیں نہ مانیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ثابت کرنے کے لیے, مجھے پتہ ہے میں کیا دعائیں کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے, میری دعا یہی ہے, سن لیں میری دعا بھی سن لیں. میں اللہ کو کہہ رہی ہوں اگر میں غلط ہوں, اگر یہ ندانی ہے, بیوقوفی ہے, میری ناعقلی ہے, تو مجھے روک لے, میرے ہونٹ سیدھے جیسے 28 فروری تک سی ہوئے تھے, پھر روک پیدا کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا مطلب تسلی مجھے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ نے قسمیں کر لی ہیں, قسمیں ایک وہ کیونکہ ایک تو ملک فرق ہے, تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک, اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے, میرا گواہ ہونا چاہیے. اور آپ تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ نہیں, اس کا جواب دیں مجھے. اللہ کو جواب تو دے ہیں. ہاں ہاں, تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر رکھ کے حضرت صاحب کہیں کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں. میں جواب دے دوں گا اللہ کا. استغفر اللہ صاحب, یہ زیب مجھے دھونے کا دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے کہ یہ زیب نہیں دیتی آپ کو باتیں. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب یہ جو آپ کہہ رہے تھے, ایک اور یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے تمہارے مشیر کون ہے, یہ بھی بزن آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تمہارا آپ کہہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور مجھے یہ کس قسم کی بدزانیاں, کبھی آپ کہہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو, خود مجھے کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بدزانی نہ کرو, تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اصول, اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور. میں تو شوائد کے اوپر ایک سوال کیا تھا تمہارے سے, تم کہتی ہو نہیں ہے کوئی, تو ٹھیک ہے پتہ لگ گیا کہ نہیں ہے. ہاں, کہ نہیں. اور آپ کے تو بھی مشورے, جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے, وہ شاید آپ اس سے ڈر رہے ہوں, مجھے قطعاً ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. وہ چاہے مجھے مار دیں, آپ ہٹ مین ہائر کر لیں اور قتل کر لیں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. میں نہیں ڈروں گی, میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت. ہاں, اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میرے پوائنٹ ساتھ ساتھ. ایک منٹ, ہاں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفیع ابا اور دادا کے بھائی تھے, اور حضرت مسلم ماؤد آپ کے جو نانا تھے ان کے بیٹے تھے, مگر ان دونوں بھائیوں نے انصاف کا تقاضا کیا تھا چچا کے بارے میں. اور ہاں یہ بھی جو آپ نے ایک میسج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ اس پاگل آدمی محمود شاہ کو جو لکھا تھا, اور میں نے کہا میں حکمت کر رہی تھی, تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 200 پاؤنڈ بابا کو بھیج رہے ہیں, وہ آپ حکمت کر رہے ہیں, تو میں نہیں حکمت کر سکتی؟ کیا حکمت؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا, میں ایک ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی اپنی طرف سے. کیا کر رہی تھی؟ ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی, حکمت کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو جو ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, وہ تو طاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو, اور سارا عام احمدی یہ کہہ رہے, عام احمدی. یہ آپ پتہ ہے جس ببل میں آپ رہنے, اللہ, میں تو یہی دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہاں ہاں, کیونکہ آپ, مجھے نہیں پتا آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابا کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا, وہ زیرو تھا, وہ میری جوتی کے نوک پہ بھی نہیں تھا, ویسے تو ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بڑی اسٹیٹس دیا ہوا ہے, اور میں نے ایویڈنس دے دیا ہے, وہ آپ مانیں نہ مانیں, وہ ایویڈنس کانکریٹ ہے کہ یہ لفظیات باتیں وہ کر رہے ہیں, چاہے میں نے انیشیٹ کیا. اور آپ کو ایک 70 سال کے آپ حضرت صاحب, ایک تجربہ مطلب والے آدمی ہیں, خلافت کو ایک طرف کریں. ٹھیک, بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو, اس لیے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو,
और इस किस्म की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। मेरा घर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आदमी घर बसाने का उसको कहता है जब कमजोर हो। मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ, तो ये इसलिए आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ। फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे, अगर ये नेकी है। हाँ, ठीक है। मैं अभी कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ, वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनौन ने जो भी आपने वर्ड यूज किए है वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया। और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है, मैंने मजीद चचा मुबश्शिर को कब सवाल किया है? चचा मुबश्शिर को मैंने उससे पूछा था, तुम्हारी पहले आई है, आपको देख लूं। नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। आदमी के हाथ में कोई बात होती है तो आगे बात चलाता है। तो आपने वैसे हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस। मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि फहाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं चाहिए। ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए? फपरे थे। अच्छा। हाँ, नहीं, ये फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके हैं, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी जमीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अकल कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। उससे साहब मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है। जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दी है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कन पट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उज़्मा बाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा मुबश्शिर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम ही रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो फौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो उम्मीद है बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ, एग्जैक्टली जी। अब तो आप ये कि
केस फेयरली चला रही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। हाँ अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होता, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? हसन मुस्लिम, हाँ ये जो मुझे उस वक्त आप पिछली दफा भी कहते चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हजरत इस्लाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हजरत मुस्लिम इस्लाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क़यामत आ गई हमारे ऊपर। उस इल्हाम का आपके नजदीक उस इल्हाम का क्या मतलब है? भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान इस्लाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई मैं कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त। देखे अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे हैं, सच नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो, हाँ अल्लाह करे तो सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनकी जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो सरसरी बात हुई थी और 2018 हाँ, मगर ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहरहाल जो चचा बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता नहीं, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचेंगे तो जवाब दे। अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं? मैंने फैक्स नहीं किया, सीएस नहीं किया, मैंने महबूब तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं, जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात करते जनाई करते हैं, और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं, मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना है? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा?
जिसको भौंक रहे हैं इस वक्त सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं कर रहे हो, ना मेरा मुलाजिम है ना जमात का मुलाजिम है, इस तरह वो कर रहा है। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें सबको हुई हैं, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। तुम कौन से रुक गई हो, तुम भी तो कर ही रही नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज चाहते हैं ना, व्हाट्सएप पे चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं। ट्विटर पे ना जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया और यही मैंने पूछा, तुम्हारी जो बात है वो बात तो खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुक जाएं जी, अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अजीज़ दोस्तों, ये आखिरी अल्फाज मिर्ज़ा साहब के सुन लें। मिर्ज़ा मसरूर, ये खलीफातुल मसीह जो है अहमदियत का, ये सुन लें। पूरी 44 मिनट की बहस के बाद ये बच्ची को क्या कहता है। इतना सारा जुल्म, ये सारी ज्यादती सुनने के बाद, जानियों को मुसलसल छुपाते हुए, उनकी साइड लेते हुए एंड पे क्या कहता है, ये सुने जरा। ये यहाँ से सुन के जाइएगा आखिर। व्हाट्सएप पे चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया और यही मैंने पूछा, तुम्हारी जो बात है वो बात तो खत्म। बक बक काफी हो गया है। मिर्ज़ा मसरूर अहमद के ये आखिरी अल्फाज के बक बक काफी हो गया है, ये हर वफादार इनकी पूजा करने वाले अहमदी के लिए एक सवालिया निशान है कि आखिर कब तक आपकी बच्चियों की इज्जतें लूट कर फिर ऊपर से ये बक बक वाले अल्फाज बोले जाएंगे जब वो शिकायत लेके पहुंचेगी। ये तो फिर खलीफा की भतीजी थी और उसके साथ ये रवैया है। एक आम अहमदी की तो औकात ही नहीं है कि वो खलीफा के सामने जाके कोई इस तरह बात कर सके या वो अपनी कोई सवाल रख सके या इस तरह की डिस्कशन कर सके। ये बियॉन्ड योर लिमिट्स है। ये भतीजी थी, वहां तक एक्सेस हो गया और ये पहुंच गई और ये बात होगी। आपको तो वैसे ही ये थर्ड क्लास समझते हैं, आपको तो कोई नीचे अछूत बिरादरी समझते हैं, जिस तरह हिंदुइज्म में होता है। सोचिएगा और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि इस पे क्या करना है। और ये हमारे सारे मुसलमान दोस्त जो इसको सुन रहे हैं, अभी जाए ना, रुके। ये आपकी फरमाइश के ऊपर ये पूरी की पूरी ऑडियो अलग से लगा दी गई है, बिला तबसरा, इसमें बीच में कहीं पे कोई बात नहीं हमने की है। बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, इसको लाइक ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करें। जरा कोशिश करके प्लीज, जो यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान के अलावा बाहर के कंट्रीज में जहां भी कहीं से आप हमें देख रहे हैं, इसको किसी ना किसी तरह से शेयर करें। जिसको कोई आधी पचद्दी उर्दू आती है आपके किसी दोस्त को, उनको दिखाएं और अपने लोकल एमपीज को वहां पे लिखें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि ये जनाब जो अहमदिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये घूमती फिरती है और ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम पे ये जो चंदे बटोर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनका लीडर जो है वो ये हरकतें कर रहा है कि वो विक्टिम शेमिंग कर रहा है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसी को डरा धमका के चुप कर रहा है। ये किस तरह चल सकता है हमारे कंट्री के अंदर? कहां गए वुमेन राइट्स, कहां गए ह्यूमन राइट्स, किधर गई वो आजादी इजहार राय, और जिसका ढिंडोरा आप पीटते रहते हैं इधर उधर के ममालिक में और यूएन में सारा दिन बगल बजाते रहते हैं बैठ के, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो गई कहां पे? ये सवाल उनसे जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइएगा जरूर। हाँ जी, ठीक है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके। इसको जरूर पहुंचाइएगा, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इस जुल्म का एंड इसी तरह से हो सकता है। प्रैक्टिकली हर बंदा एक एक कदम उठाए, एक एक कतरा मिलके एक दिन इंशाल्लाह दरिया बनेगा। इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने